Dear students, continuing with the topic, I will show you the Mendeleev's periodic table. You can see, as I have already told you, that there are periods and there are groups. The vertical columns are called groups and the horizontal rows are called periods. And I have told you that the oxides are at the oxides and hydrides are represented at the top. R2O, it's an oxide. RO, R2O3, RO3, these are oxides. And then this you see these are hydrides, and you see in each group the elements here, elements. And if you will have a look on this table, you will see that the elements have been arranged on the basis of their increasing atomic mass. However, there are some exceptions. Now we will achievements of Mendeleev's periodic table. Achievements, ACHIEVEMENTS, achievements of Mendeleev's periodic table. अचीवमेंट क्या है? पहली अचीवमेंट है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये पहली अचीवमेंट है. दिस फर्स्ट. जो मेंडलीव है, इसका पीरियोडिक टेबल जो है, इसने प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो हैं उनको स्टडी किया है, और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक ही पीरियड एक ही ग्रुप में लगा दिया गया है. तो एलिमेंट्स इन द ग्रुप, properties of other elements in the group can easily guessed. Thus, it provides a useful aid in studying and remembering the properties of large number of elements. तो पहला है systematic study of elements, और दूसरा जो है इसका classification of elements on the basis of fundamental atomic property. Fundamental atomic property, classification of elements on the basis of fundamental 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 atomic property. Classification of elements on the basis of fundamental atomic property. मेंडलीव जो है इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया on the basis of increasing atomic mass. There are more fundamental property than earlier attempts. Earlier attempts में इससे ज़्यादा fundamental atomic property है. तो दूसरी जो बात है, क्लासिफिकेशन इसने की है on the basis of atomic mass. तीसरा है correction of atomic mass. यह contribution of Mendeleev's periodic table. correction of atomic mass, ये तीसरी अचीवमेंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, कि कुछ चीज़ों की एटॉमिक मास ने करेक्शन की है. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट एरर्स इन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द टेबल. टेबल में जो उनकी पोजीशन है, अगर कहीं पे एटॉमिक मास में एरर था तो उसने वो सही किया. मेंडलीव, द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर करेक्टेड. फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज corrected from 13.5 to 9, e.g. atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. In actual atomic mass of the beryllium is 9 and it was incorrected as 13.5. the Mendeleev corrected it. Similarly, with the help of this table, atomic mass of indium, gold, platinum, इसके अलावा जो इंडियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो इनके एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया गया है मेंडलीव के द्वारा. तो इसी तरह जो चौथी बात है वो है prediction of new elements. prediction of new elements, ये चौथी बात है. प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स क्या है?
मेंडलीव जो है इसने क्या किया, only 63 elements were known. While arranging the elements he left some gaps. एलिमेंट्स को अरेंज करते उसने कुछ गैप्स रखी हैं। तो ये गैप्स किस लिए? दीज गैप्स रिप्रेजेंटेड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। Mendeleev predicted the properties of these undiscovered elements on the basis of their positions. Mendeleev predicted the existence of the properties of some undiscovered elements. कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे तो उनकी प्रॉपर्टीज को इसने प्रिडिक्ट किया है। मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया है। तो इसने कहा मेंडलीव ने कि कुछ नए एलिमेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं, तो उनके लिए इसने जगह रखी है। मसलन ही प्रिडिक्टेड name of the preceding element in the group. He predicted the properties of some of these elements and named as Ika boron, Ika aluminum, Ika silicon. All these elements were discovered later and had properties similar to those predicted by the Mendeleev. तो ये सारे एलिमेंट्स जो थे ये बाद में दरियाफ्त किए गए और इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थे जो जैसे कि इसने कहा था। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, ई.जी. जो स्कैंडियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड गैलियम ये लेटर डिस्कवर किए गए हैं, लेटर डिस्कवर्ड। इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो were later discovered similar to those Ika boron, Ika aluminum and Ika silicon. इनकी प्रॉपर्टीज जो थी were similar to Ika aluminum, Ika boron and Ika silicon as predicted by the Mendeleev. So this is the fourth achievement of Mendeleev's periodic table. And fifth achievement of Mendeleev's periodic table is position of noble gases. Position of noble gases. ये जो है, this is the fifth achievement. Noble gases like helium, neon, argon, krypton were mentioned in many studies. However, these gases were discovered very later because they are inert and are present in extremely low concentrations. ये गैसेस जो हैं ये बहुत बाद में दरियाफ्त किए गए हैं क्योंकि वो इनर्ट होते हैं और एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन पे प्लेस किया गया है उनको, प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली लेस। वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered they could be placed in the new group without disturbing the existing order. एक इसकी जो खासियत थी कि जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर किए गए हैं, इनमें नोबल गैसेस में कौन कौन सा आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जब इनको दरियाफ्त किया गया तो इनको भी प्लेस किया गया जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था, और जो ऑलरेडी ऑर्डर वहाँ पे था उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। तो ये भी एक खासियत थी, एक अचीवमेंट थी जो मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल था। अब हम इसके लिमिटेशंस पे जाएंगे। LIMITATIONS लिमिटेशन है, खामियां क्या रही हैं। पहली खामी जो रही है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द ग्रुप फर्स्ट बी। ग्रुप फर्स्ट बी में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है। तो ये ग्रुप फर्स्ट बी में प्लेस किया गया है हाइड्रोजन को एलिमेंट्स, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7th ए, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करते हैं
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप जो सेवंथ है, सेवंथ ए हेलोजनस के साथ। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ भी इसको ग्रुप 1B में लगाया गया है, जबकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट से और ग्रुप सेवंथ ए के एलिमेंट से भी रिजेंबल करती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की है वो रिजेंबल करती है अल्कली मेटल्स से। इसी तरह लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइन्स विद हेलोजन्स, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके साथ ये कंबाइन करता है और कंपाउंड्स बनाता है और सिमिलर फार्मूला उनकी बनती है, जैसे HCl, H2O, H2S। तो ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल्स विद हेलोजन्स, हेलोजन के साथ भी ये रिजेंबल करता है। तो हाइड्रोजन इज एज डायटोमिक, हाइड्रोजन हेलोजनस एज डायटोमिक, चूंकि हाइड्रोजन है डायटोमिक H2, इसी तरह हेलोजनस भी डायटोमिक F2, Cl2 वगैरह। देयरफॉर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट करेक्टली डिफाइंड। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इस पीरियोडिक टेबल में है वो करेक्टली डिफाइन नहीं है। तो ये पहला है। दूसरा है एनोमलस पेयर्स, ANOMALOUS, एनोमलस पेयर्स, ये दूसरा है एनोमलस पेयर्स। एनोमलस पेयर्स में क्या है? इन सर्टन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास वाज नॉट ओबेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को ओबे नहीं किया गया। बहुत सारे पीरियड ऐसे हैं जहां पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को जो है उसको ओबे नहीं किया गया है। इन दीज केसेस मेनली प्लेस्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज। इसने कैसे एलिमेंट्स को प्लेस किया है? सिमिलरिटीज के हिसाब से, जो इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हैं, यकसानियत है, तो उसके हिसाब से। नॉट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर। मसलन आर्गन जो है, आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 है, इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, जिसका 39.1 है। मसलन आर्गन एक है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 39.9 है, इसको बिफोर प्लेस किया गया है, प्लेस्ड बिफोर किससे पहले इसको प्लेस किया गया है? पोटेशियम, जिसका 39.1 है। तो अब अगर इसका 39.1 है, इससे पहले इसको लगाया गया, यानी पहले इसको लगाना चाहिए था, लगाया गया इसको। सिमिलरली कोबाल्ट जो है, इसी तरह कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है 58.93 है, इसको निकल से पहले लगाया गया है, जिसका 58.71 है। प्लेस्ड कोबाल्ट 58.93 प्लेस्ड बिफोर निकल of atomic mass निकल का एटॉमिक मास जो है वो है 58.93, 58 कोबाल्ट 58, निकल का जो है 58.71 है। यानी पहले ये आना चाहिए था, लेकिन लगाया गया इसको पहले, तो यहाँ भी इसको फॉलो नहीं किया गया है एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो किया गया है। तो ये तीसरी लिमिटेशन है। चौथी है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये जो है दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ this Mendeleev's periodic table, position of isotopes. Isotopes are the atoms of the same element having different atomic mass. एक ही एलिमेंट के एटम जिनको एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। Therefore, according to Mendeleev's classification, they should be placed in different places depending upon their atomic mass. लेकिन हाइड्रोजन आइसोटोप्स विद एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन आइसोटोप्स विद एटॉमिक मास 1, 2 and 3 should be placed at 3 places. However, isotopes have not been placed given separate places in the periodic table. जो हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर मास 1, 2 और 3 है, इनको 3 प्लेसेस, 3 जगहों पे
लगाना चाहिए था, लेकिन आइसोटोप्स हैव नॉट बीन गिवन सेपरेट प्लेसेस, इनको अलग जगह नहीं दी गई है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब जो है कॉज ऑफ जो पांचवी है, दैट इज सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये है पांचवी, सिमिलर एलिमेंट्स आर separated and dissimilar elements are grouped together। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को जो है अलग किया गया है और डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप टुगेदर किया गया है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में सम सिमिलर एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड in the different groups, where some dissimilar elements have been grouped together. For example, copper and mercury resembled their properties, but they had been placed in different groups. जो copper है, Cu and mercury, ये प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है और resembled in their properties, but they have been put in the different groups. At the same time, elements of group first A, such as lithium, sodium, potassium, were grouped with copper, silver and gold, though their properties are quite different. इसी तरह जो group first A, such as lithium, sodium and potassium, were grouped with copper, silver and gold, though their properties are quite different. So this is another drawback, another limitation of the Mendeleev's periodic law. So dear students, I hope that you must have remembered and understood these things and kept in mind. Okay, I pray to Almighty Allah, may He shower His blessings upon all of us and keep us away from the present pandemic. Thanks.